तो अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके, ट्रांसपेरेंट मीडियम से हम रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, एंड देयर आर थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स थ्रू विच द रिफ्रैक्शन विल हैपन, एंड वी विल स्टडी अबाउट ईच थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ द शेप्स। तो सबसे पहला शेप ये होता है जिसको हम जब दो रिफ्रैक्शन कहाँ से होता है, दो मीडियम के इंटरफेस से। Okay, so there we have the very first shape that is called slab. Okay, or we call it glass slab. Glass slab is a material in which it will have two refracting surface. Okay, and both the refracting surface, suppose it is made up of glass, it can be made up of gel, it can be made up of water, okay, or anything else. So it will have one medium. Okay, medium one, suppose this is of air, and second one can be made up of the glass, and that again light will go from medium one, it will travel inside, then it will come out in the same medium. ठीक है, तो ग्लास स्लैब होता क्या है, इन विच देयर इज टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बस काम करेंगे, उसमें होती बहुत सारी सरफेस है। जैसे कि ये ग्लास स्लैब हो गया, मान लो ये ग्लास का होता, तो मान लो लाइट यहाँ से एंटर कर रही है, तो if it is entering from here, it will come out from here. Rest all, it has 6 faces, but rest 1 2 3 4 upward, up, down, front and back, these 4 will have no work. So only this surface and this surface will work. So these two are the refracting surface. If you will keep it like this and this will work, and these 4 will remain, will not do any work, है ना। ऐसा रख दोगे तो इधर से और इधर से निकलेगी, फिर 4 जो हो जाएंगी तुम्हारी नॉन रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएंगी। सो इन दिस देयर आर, you can say, 6 phases, but only refracting surface will be 2, and both the reflecting surface will be parallel. So when two reflecting surfaces are parallel, that particular arrangement is called as the slab. So what is a slab? When two refracting surface are parallel to each other. पहले इसमें देखेंगे अपन। Then second shape is called as a prism. Prism किस तरह का होता है, इस तरह का। Okay, in this you can say there are it's like in the different shape. Okay, so you don't have a prism shape, something like here, so you can consider it like this. Okay, ये कुछ इस तरह का रहेगा। Okay, prism. So in this also these two will be reflecting surface, one and this two. ठीक, these two will be reflecting surface. Light will enter from here, it will travel inside, it will come out from the other surface. So here ये जो सरफेस जो सामने तुमको दिख रही है और जो पीछे, ये कोई काम नहीं करेगी, और नीचे की सरफेस भी कोई काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हैं, नॉन पैरेलल। सो व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर प्लेन बट नॉन पैरेलल टू ईच अदर, देन दैट इज कॉल्ड एज प्रिज्म। प्रिज्म क्या होगा तुम्हारा, व्हेन रिफ्लेक्टिंग, इसमें प्लेन भी होंगे और कैसी होंगी, पैरेलल टू ईच अदर, आर प्लेन, you can write plane and parallel to each other. Here the refracting surface are plane but not, or you can say, non-parallel to each other. इसमें भी देखेंगे अपन की रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। एंड देयर इज अ थर्ड वन, एंड इन द थर्ड वन वी कॉल इट लेंस। लेंस कैसा होगा, जैसे चाय की दो प्लेट है, दोनों प्लेट को इस तरह से जोड़ दो, तो तुम्हारा एक क्या बन गया, लेंस, इस तरह का। ठीक है, दिस कैन बी लेंस, दिस कैन ऑल्सो बी लेंस। ओके, दिस कैन ऑल्सो बी द लेंस, दिस कैन ऑल्सो बी द लेंस। तो लेंस किसी भी तरह का हो सकता है। तो इसमें इसकी लेंस की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं अपन, कि ये भी लेंस है, ये भी लेंस है, ये भी लेंस है, ये भी लेंस है। So we can say that one refracting surface, okay, either the
कोई भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो प्लेन ना हो के कैसी हो, कर्व्ड हो। व्हेन either of the reflecting surface is non-parallel but curved, then that will be called as your lens. So what will be the lens? When either refracting surface is curved instead of plane। ठीक है, कोई भी एक और either or you can write at least one refracting surface is curved। okay, at least one refracting surface is curved। so एक से भी काम चल जाएगा और अगर दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं तो दोनों से भी काम जाएगा। so now the first thing we are going to see the refraction through the glass slab। okay, then we will go to the prism and then we will study about other things, but right now we are going to study about the refraction through the glass slab। so I will erase it and then we will continue the refraction through glass slab। okay, so this is a glass slab we have taken and this is the incident ray, or we can call it incoming ray or incident ray। so when it is entering this, suppose it is entering from air, this your medium 1 is air and this is your medium 2, it can be glass, I will write it glass, okay, it can be glass। then so when the light will enter from this, your glass will be your denser medium, then the your this एयर, ओके, ग्लास जो होगी क्या होगी तुम्हारी डेंसर होगी और जो एयर होगी तुम्हारी रेयर मीडियम होगी। सो लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। सो व्हेन द लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अपने पास ये जो पॉइंट है, ओके, दिस पॉइंट हियर, सो to find the refracted ray we must draw a normal here। so we will draw a normal here at the point of incidence। so let's say this P, we can call this point as Q, okay, so that at point of incidence we have drawn a normal and that normal let's call it N1। so क्या बोल दिया अपन ने, N1। so on this path the ray was supposed to go, इस पाथ पे इसको जाना चाहिए था, लेकिन इस पाथ में ना जाके क्या हो जाएगी तुम्हारे, इट वॉज सपोज टू गो इन दैट पाथ, it was supposed to go in that path, but instead of going there, what it will happen, because it is entering in the denser medium, the ray will bend towards the normal। वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, और ये किधर से जाएगी, इसके नीचे से। so like this it will go। so this is incoming ray and this when the light is entering in the glass or in the second medium is your denser medium। so when it is entering in the second medium, then in that case what will happen, this light ray will bend towards the normal and this ray we will call it refracted ray, and this is the angle between normal and incident ray, so we call it incidence angle, and this is the angle between your refracted ray, this is the refracted ray and this is normal, so this angle will be referred as angle of refraction। ठीक है, ये एंगल रिफ्रैक्शन का होगा और ये एंगल कौन सा होगा तुम्हारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ अगेन, तो ये पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर की तो नॉर्मल की तरफ क्या हो गई तुम्हारी, बेंड हो गई, बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। सो व्हेन हियर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट हियर, this is again the interface between the denser medium to the rarer medium। now your first medium is your denser and second medium is rarer। अब इसको छोड़ दे, केवल यहाँ की बात करें तो ये जो लाइट आ रही है ये डेंसर मीडियम, और जब बाहर जाएगी तो वो कौन सा मीडियम होगा तुम्हारा, rarer medium, because it is again it will come in this medium
m1 and this is again what it is air. So means it will go from denser medium to the rarer medium. Then what will happen when the light goes from denser to rarer? It bends away from the normal, है ना. तो ये point of incidence था. This was PQR. We can call this point as R. Okay. So this angle will also be equals to your, we call this R because this is alternate opposite angle. These are the parallel faces. This R and this R will be alternate opposite angle, so R will be equal. So when it will go out, it was supposed to follow this path, है ना. उसको इस पाथ पे जाना चाहिए था. अगर उसका सीधे जा रही थी तो उसको इस पाथ पे जाना चाहिए था. लेकिन अब होगा क्या, that it will not follow that path. It will, this is the normal, and call this is your normal. So normal से अभी जब डेंसर से रेयर से डेंसर में गई थी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई थी. अब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी. सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. So it will bend away from the normal like this. Okay, and this was the incoming ray and this ray has came out, so we call it either emergent ray or we can call it outcoming ray. You can call it anything, PQRS you can say. तो जब हम देखेंगे कि ये जो रे है और ये जो रे है, दिस वॉज द, अगर प्रिज्म ये ग्लास स्लैब ना होता तो वो किस पाथ पे जाती? दिस पाथ इट वाज सपोज टू फॉलो. ओके, नाउ एज यू हैव पुट द ग्लास स्लैब ओके हियर, सो व्हाट हैज हैपेंड, द लाइट रे हैज बीन शिफ्टेड. वो क्या हो गई तुम्हारी? शिफ्ट हो गई. इट हैज बीन शिफ्टेड बट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन स्टिल रिमेन्स कांस्टेंट. ये देखो कि जो इमर्जेंट रे आएगी और जो इनकमिंग लाइट रे दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल है. एंड व्हाई दीज आर पैरेलल? बिकॉज दिस इस यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हुआ था और यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हुआ है, दोनों पैरेलल इंटरफेस होने के कारण जो रिफ्रैक्शन क्या हो गया तुम्हारा? कैंसिल हो गया. एक दूसरे को क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए. यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा था और यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हुआ दोनों पॉइंट के कारण, तो यहाँ पे जितना एंगल तुम्हारा चेंज हुआ था वो एंगल यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा? रिस्टोर. जितने एंगल से ये डेविएट हुई थी वही एंगल इसमें वापस क्या हो गया? रिस्टोर हो गया. तो ये जो लाइट रे है इनकमिंग एंड दिस इमर्जेंट लाइट रे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. सो इन दिस रिफ्रैक्शन देयर इज नो डेविएशन, है ना. टोटल रिफ्रैक्शन देखेंगे तो यहाँ पे डेविएशन नहीं हुआ है, मतलब वो अपने पाथ से डेविएट नहीं हुई, उसी डायरेक्शन में अभी भी ट्रेवल कर रही है. बट this is called, this is, it has been shifted. तो इस शिफ्ट को अपन बोलते हैं लेटरल शिफ्ट. इस शिफ्ट को अपन क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट. दिस शिफ्ट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज द लेटरल शिफ्ट. लेटरल शिफ्ट मतलब जैसे मिरर में भी आपकी जो इमेज बनती है ना, तो मिरर में इमेज बनती है तो कैसी बनती है? राइट ईयर लेफ्ट में बनता है और लेफ्ट ईयर राइट में बनता है. मींस इट हैज बीन शिफ्टेड अपोजिट साइड. सो उसको अपन क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन, है ना. और जो वर्टिकल इन्वर्जन होता है उसको क्या कहते हैं? वर्चू इरेक्ट एंड इन्वर्टेड. तो ये जो इस तरह से होता है राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट, उसको क्या बोलते हैं अपन? इस तरह से चेंज होना, उसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन. तो हियर ऑल्सो this is referred as the lateral shift or sometimes also it is called as the lateral displacement. ठीक है, this is also called as the lateral displacement. So most of the times ये पूछा नहीं जाता कि lateral displacement. अच्छा एक चीज और, ये जो एंगल बनेगा इमर्जेंट रे का, ठीक है, this angle of emergent ray with this normal, this is called as the emergent angle. And what happens here, the emergent angle और angle of incidence दोनों क्या होते हैं? लगभग दोनों क्या होते हैं तुम्हारे? बराबर, because that angle has been restored here. So here the light is shifting. Okay, the light is shifting, light ray is shifting from its original path. तो इसमें शिफ्ट किस किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, या शिफ्ट कितना होता है, ये अपन निकालते हैं.
Okay, so how much shift is going to happen here, that we will see. So at this, from this point we will draw इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं. ओके, साफ करने के लिए दिस यू नो दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, सो आई विल इरेज इट हियर. इसको यहाँ इरेज कर देते हैं और यहाँ पे इस एंगल को भी इरेज कर देते हैं. ठीक है, and then I will draw this line, I will extend. So how much angle it will subtend here? 90 degree. So this will become your 90 degree. Now here from this point R, I will draw a normal on this extended light ray. इसमें क्या किया मैंने, ये मान लो पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा U, या फिर कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो. मैंने U इसलिए ले लिया, RS तक हो गया था तो U. सो दिस शिफ्ट कितना हुआ इसमें, ये पॉइंट R था, इतना शिफ्ट हो गया है. कितना शिफ्ट हो गया तुम्हारा, UR शिफ्ट हो गया है. इतना ही शिफ्ट हुआ है ना. ये डिस्टेंस ये क्या रहेगी, हमेशा बराबर रहेगी, कहीं और की नहीं ले सकते थे. तो इस पॉइंट से यहाँ तक का क्या हो गया तुम्हारा, शिफ्ट हो गया. नाउ लेट्स से द थिकनेस ऑफ द स्लैब is how much, T. Thickness of the slab is T. Thickness of the slab is T. So we will calculate how much is the, you can say how much is the lateral displacement is there. तो lateral displacement निकालते हैं अब कितना हुआ lateral displacement. Okay, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि ये ट्रायंगल लेते हैं अपन. विल टेक अ ट्रायंगल विच QRU and U. दिस ट्रायंगल वी विल टेक. तो QRU में ये एंगल कितने का होगा तुम्हारा, दिस एंगल विल बी ऑफ हाउ मच. सी दिस लाइट इज दिस, ये वाली लाइट ये जा रही है, ठीक है, और ये, तो ये पूरा किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा. अपोजिट एंगल है क्योंकि दिस वन विल बी इक्वल्स टू I, एंड I में से R माइनस कर दिए तो ये वाला एंगल निकल के आएगा. तो ये एंगल कितना हो गया तुम्हारा, I माइनस R. यू कैन सी दिस एंगल विल बी योर I माइनस R. सो साइन I माइनस R कितना हो जाएगा, साइन I माइनस R, साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. तो ये तो 90 डिग्री का एंगल हो. साइड अपोजिट कौन सी होगी तुम्हारी, UR. अब हाइपोटेनियस क्या हो गया तुम्हारा, QR. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा UR, है ना, अपॉन हाइपोटेनियस. दिस इज देयर हाइपोटेनियस. अब ये वाले ट्रायंगल्स को ले लेते हैं. नाउ triangle Q and this point, what we call this point, इसको चलो T बोल देते हैं, है ना, T बोल देते हैं. So QRT, एंगल QRT. तो ट्रायंगल QRT लिया, तो इसमें अगर अपन cos R लेते हैं तो cos R क्या हो जाएगा तुम्हारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस ये हो गया, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी तुम्हारी QR. सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या हो गया तुम्हारा QR, सॉरी QT. QT इज बेस एंड हाइपोटेनियस इज QR. सो QT को क्या लिख सकते हैं, QT तुम्हारा थिकनेस के बराबर है T बाय QR. Okay, you can write this is your thickness of slab. Okay, this is the thickness of slab T, और QT thickness of the slab कितना हो गया T. So these two equations we have 1 and 2. दोनों को अगर अपन डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग 1 and 2. So what we are going to get here, sine
I माइनस R अपॉन cos R क्या हो जाएगा, यू आर अपॉन क्यू आर बाय टी अपॉन क्यू आर, तो ये कैंसल हो गया, यू आर बाय टी। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है तुम्हारा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज क्यू आर, सॉरी यू आर, सो यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, टी इंटू साइन आई माइनस आर बाय cos r. This is your, you can call it, this is your lateral shift. Lateral shift u r is equals to क्या हो गया, t into sin I minus r upon cos r। तो किया क्या अपन ने यहाँ पे, ये जो लाइट थी तुम्हारी इनकमिंग, इसी को एक्सटेंड किया और इस पे इस एक्सटेंड पॉइंट आर से अपन ने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये ट्रायंगल ले लिया। तो ये एंगल कितने का हो गया, ये तुम्हारा आर का था, ये पूरा एंगल आई के बराबर होता है, इसके साथ ये वाला, तो उसमें से आर सब्ट्रैक्ट कर दे तो आई माइनस आर आ गया। अब इस ट्रायंगल में जो तुम्हारा क्यू आर यू था, क्यू आर यू ट्रायंगल में अपन ने साइन आई माइनस आर का रेशियो लिया है, ओके, साइन आई माइनस आर का रेशियो लिया है, तो वो कितना हो गया तुम्हारा, साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यू आर अपॉन दिस क्यू आर, एंड सेकेंड ट्रायंगल वी हैव टेकन दिस क्यू आर टी, इसमें कॉस आर का रेशियो लिया है, तो क्यू टी अपॉन क्यू आर हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और फिर दोनों को डिवाइड कर दिया, तुमको निकालना था यू आर लेटरल शिफ्ट, एंड दिस विल बी योर लेटरल शिफ्ट। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेटरल शिफ्ट। तो ये अब कोई भी इक्वेशन नहीं है, मतलब लेटरल शिफ्ट इज इक्वल टू यू आर इज इक्वल टू क्या आ गया, टी साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। तो लेटरल शिफ्ट मतलब यहाँ पे ये बता रहा है, देखो कि ये किस किस चीज को बता रहा है कि सॉरी इसको यू आर लिख देते हैं, ये किस किस चीज को बता रहा है तुम्हारा, कि जो लेटरल शिफ्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा, थिकनेस पे और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम जितना ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा इसमें क्या होगा, लेटरल शिफ्ट होगा, जितना ज्यादा तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है, सॉरी जितना, हाँ, तो वहां जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, लेटरल शिफ्ट। सो इट इज डिपेंडिंग ऑन टू थिंग्स, एंड थर्ड थिंग इट विल डिपेंड ऑन इट्स यू कैन से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसी में आ जाएगा, साइन आई बाय साइन आर, जब इसको तुम वो करोगे तो साइन आई बाय साइन आर करोगे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आ जाएगा। सो मीन्स योर लेटरल शिफ्ट इज डिपेंडिंग ऑन इट्स थिकनेस, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, ठीक है, पहली चीज हो गई थिकनेस, दूसरी मटेरियल की प्रॉपर्टी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड थर्ड इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो ऑन थ्री थिंग्स दैट लेटरल शिफ्ट इज गोइंग टू डिपेंड, कि किस एंगल से लाइट उसमें एंटर कर रही है, प्लस कि वो मटेरियल कौन सा है जिससे तुम्हारा ग्लास स्लैब बना है, और थर्ड तुम्हारा कि उसकी थिकनेस कितनी है। सो ऑन थ्री पैरामीटर द लेटरल शिफ्ट इज गोइंग टू डिपेंड व्हेन अ लाइट इज एंटरिंग थ्रू इट, एंड हाउ मच विल बी योर लेटरल शिफ्ट ऑन दैट। थैंक यू।